Good morning to all of you. So, students, we are going to start or continue with the chapter The Plants Around Us. We all have done an exercise based on this. सबने एक plant लिया था and you all defined the different parts of the plants. So, we are going to move forward in this chapter. अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यू चीज़ें पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है? So just be ready with your books and a pencil eraser and open page number 85. Today we are going to study about stem, leaves, vegetable and fruits, flowers and some types of plants. Today we are going to discuss about these points. So here we start the chapter. We eat different parts of a plant. हम different parts खाते हैं plant के. हम root भी खाते हैं, हम shoot भी खाते हैं. Different parts हम eat करते हैं. The stem is green or brown colored. सबने plant देखा है, मैम ने एक activity कराई थी. उसमें roots, plants, roots, stem, leaf, flowers and fruits सबने अच्छे से देखा. Stem ग्रीन कलर का होता है, नहीं तो ब्राउन कलर का. There are two colors of your stem, that is one is the green and the another one is brown. It supports the other parts of a plant. Some stems store food also, example potato, ginger and sugarcane. जो स्टेम होता है वो आपके पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है. Stem is, you can say, the main basic building block of your building. जैसे अगर आपका plant है तो जो stem है, stem leaves भी आपके stem पे ही base है. अगर stem नहीं होगा तो leaves नहीं हो पाएंगी. आपके leaves से ही attached flowers होते हैं, फिर fruits भी उन्हीं से hang करते हैं. So the important part is your stem, and which is the basic requirement of a plant that supports the other plants of a plant to grow and to stand erect. सीधे खड़े होने में, पौधा अगर कोई सीधा खड़ा होता है तो it is the stem, वो stem है जो उसे सीधे खड़ा रखता है. If we talk about the roots, if we come and talk about the roots, then the roots you find just beneath the ground. आपको प्लांट का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है रूट, वो आपको हमेशा ग्राउंड के नीचे मिलेगा. एंड दैट इज द पार्ट विच होल्ड योर प्लांट, विच एंकर योर प्लांट. आपके प्लांट को जो खड़ा रखता है, सीधा खड़ा रखता है, दैट इज द स्टेम. एंड स्टेम को जो सीधा खड़ा रखता है, दैट इज द रूट. द रूट इज द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट is required by the whole plant to stand erect. जो different parts हैं plants के, that is based on your stem, but the stem is based on the root. ये stem होता है जो root पे based होता है, because this root helps the stem of a plant to stand erect. ठीक है? And the color of the roots are brown as they are found beneath the ground. जो ज़मीन के अंदर होते हैं, इसलिए बहुत मटमैले से होते हैं. दे आर ब्राउन इन कलर, और बहुत गंदे से, बहुत मिट्टी से सने हुए कह सकते हैं, वैसे होते हैं. Now we move further and we will talk about the leaves. Leaves are green in color. In general, if we talk, the leaves are in green in color, but if we see, तो leaves के different colors भी होते हैं. Like you can find the color of the leaves red also, yellow also. So it varies plants to plant. different plants के different colors हो सकते हैं. कभी dark green होता है leaf का color, कभी light green भी हो सकता है. तो it depends on the plant कि plant किस तरीके का है. But if it, अगर हम basic चीज़ बात करें, अगर in general में बात करें, तो the color of the leaf is green. Okay? They make food for the plant. अब
जैसे हमें ग्रो करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, इन द सेम मैनर द प्लांट्स ऑल्सो नीड food and water to grow and to keep themselves healthy. तो खाना और पानी कहाँ से मिलता है? They get water from the roots and they prepare their fruit from the leaves. खाना पत्तियों से मिलता है, पानी जड़ों से मिलती है. जो आपके रूट्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल और इन द ग्राउंड, और वो पूरा पानी पूरे पौधे को, पूरे प्लांट को मिलता है. इन द सेम मैनर द डिफरेंट लीव्स प्रेजेंट ऑन द प्लांट, दे प्रिपेयर द फूड, वो खाना बनाती हैं. उसके बाद वो जो बनता है खाना, जो प्रिपेयर करती हैं, जो बनाते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को. Understood? अब एक न्यू थिंग है दैट वी ईट सम लीव्स. हम कुछ पत्तियां भी खाते हैं एज अ फूड. खाने के तौर पे हम पत्तियां भी खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द लीव्स वी ईट, जो हम पत्तियां खाते हैं, द एग्जाम्पल इज स्पिनच, कैबेज, मिंट, कोरिएंडर. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें हम पौधे की पत्तियां खाते हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स. मेनली वी ईट द फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट. इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर कोई प्लांट है तो उसमें फ्रूट होता है, लाइक एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, तो हम वो उसके फ्रूट्स खाते हैं, ना कि हम उसके स्टेम खाएंगे, ना उसके लीव खाते हैं. Mainly we eat the fruits of a plant. We eat them as the vegetables and fruits. अब अगर प्लांट में फ्रूट है तो हम फ्रूट खाएंगे उसका. अगर वेजिटेबल है, फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर, पटेटो, ब्रिंजल, तो वी ईट ऑल दीज एज आर वेजिटेबल. ये सब हमारे वेजिटेबल हैं तो हम इन्हें एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, banana, etc. Fruits, ladyfinger, brinjal, etc. are our vegetables. Now we move towards the flowers. Flowers are the main attractive part of the plant. जो सबसे कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है वो कौन सा होता है? दैट इज द फ्लावर. दे आर सो अट्रैक्टिव, दे आर सो कलरफुल. उनका ओडर, उनका स्मेल इतना प्लीजेंट होता है, इतना अच्छा होता है. दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. वो इंसेक्ट्स को, कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं. By the help of these insects, they pollinate, which you will learn in higher classes. What is the meaning of pollination? But अभी आप ये जान लीजिए कि जो उनके फ्लावर्स का कलर होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है, उनकी स्मेल इतनी अट्रैक्टिव होती है कि बहुत ढेर सारे बीज, बटरफ्लाइज वो उनके फ्लावर्स पे आके बैठते हैं और उनको हेल्प करते हैं दूसरे फ्लावर बनाने में. ठीक है, बस अभी आप इतना समझ लो कि जो कलर्स होते हैं, जो सेंट होता है फ्लावर का, दैट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. बाकी क्यों, क्या होता है, दैट विल यू विल कम टू नो इन योर हायर क्लासेस above your class 3rd. We get some flowers like cauliflower and broccoli etc. अब हम कुछ फ्लावर्स को खाते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर एंड द ब्रोकली, है ना. दीज आर द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट जो हम खाते हैं. अभी हम लीफ भी खाए हैं, अब हम फ्लावर्स के बारे में भी जान गए, अब हम फ्रूट्स के भी बारे में जान गए. तो ये सब चीज़ें हैं जो हम खाते हैं. नाउ वी कम टू द last topic of this last topic of this page and of today's class, that is about the seeds. Seeds grow inside fruits. हर एक जो फल होता है जब आप उसको फिनिश करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सीड प्रेजेंट होता है. A seed stores food for baby plants. जो छोटे पौधे होते हैं वो आपके सीड से ही ग्रो करते हैं. So you can say they have the food material to grow for the baby plant. The new plant grows from the seed. जो आपका नया पौधा होता है वो आपके सीड से ही ग्रो करता है. We eat some seeds,
pulses and spices are seeds. हम बहुत सारे जो सीड्स होते हैं उनको हम खाते भी हैं. Like pulses and spices, these are all your seeds of a plant and we eat. ये जो स्पाइसेस हैं, पल्सेस, आपकी दालें हैं, मसाले हैं, सब बीजे होते हैं और इन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं. So for today, till here we are going to learn. Tomorrow we will move further in this chapter. ठीक है? So there is an activity for you all. What you all have to do, just take a bowl. सबको एक कटोरी लेनी है, कांच की या स्टील की, कैसे भी, वैसे कांच की लेंगे that is good. थोड़ा सा रुई ले लें, कॉटन ले लें, उसको हल्का सा भिगो ले, वेट कर ले, पूरा पानी में नहीं डुबोना है, उसको छींटे मार मार के गीला करना है. फिर उसको आप बोल में रख दें. टेक अ हैंडफुल ऑफ ग्राम और कुछ भी ले लें, चने ले लें या दाल ले लें, कोई पल्सेस ले लें, चने ले लें या मूंग की दाल ले लें. एक मुट्ठी लेनी है, हैंडफुल ऑफ ग्राम और मूंग. सोक इट इन अ बोल. धो लें उसको अच्छे, डोंट सोक, जस्ट उसको धो लें अच्छे से. उसके बाद धोने के बाद जस्ट पुट इट ऑन द कॉटन. उसको बोल को कॉटन गीला करके उसको कॉटन के ऊपर रख दें. उसको ढक दें अच्छे से. नाउ आपको उसको धीरे धीरे सिर्फ ऊपर से छींटे देना है ताकि वो सूखे ना, गीला बना रहे. यू हैव टू वॉच इट एंड यू हैव टू सी कि आपको उसमें क्या चेंजेस दिखते हैं. वो चना या मूंग की दाल को क्या होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे. बट ये एक दिन का काम नहीं है. जस्ट गो थ्रू इट फॉर अ वीक. आज से फर्स्ट क्लास है हमारी, तो आज आप हमको सैटरडे को बताएंगे कि सबने क्या क्या देखा उसमें. हमारी सैटरडे की क्लास इसी पे होगी कि आपने जो ये एक्टिविटी की उसमें क्या दिखा, आपको क्या चेंजेस आए, व्हाट यू ऑल हैव सीन इन इन मूंग और इन अ ग्राम. ठीक है, जो एक्टिविटी समझ में आ गई, आपको बोल लेना है और कुछ कॉटन लेना है. कॉटन हल्का सा गीला होना चाहिए, पूरा पानी में डुबोना नहीं है, छींटे मार के उसे गीला करें. फिर उसके ऊपर या तो चने या तो मूंग कुछ रख के उसको ढक दें. ईच डे क्या, उसको थोड़ा खोल के देखेंगे, सूख रहा है तो छींटे मार के गीला करेंगे. हर दिन देखते रहें क्या चेंजेस आ रहे हैं. सैटरडे को सब मुझे बताएंगे कि क्या क्या उसमें दिख रहा है और फोटो खींच के भेजेंगे ऑफ दिस एक्टिविटी. ओके, सो अभी गो थ्रू द वीडियो, लिसन इट वेरी क्लियरली. ये वाली एक्टिविटी आपकी होमवर्क है जो आज से आपको स्टार्ट करनी है. और ये एक्टिविटी आई एम गोइंग टू आस्क इन योर क्लास दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे. अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ 2 fruits, 2 vegetables and the food which you take as a leaf and food you take as a flower. ठीक है, I'm going to write this activity and post it on the group also. So first of all, start to watching this video, go through this video